Hello friends. So to start with the next lecture and very interesting lecture it is where what we are going to learn today. We are going to learn different type of probes and how they are generated in the laboratory. So first we will see three different type of probe. So we can say that probe, as I have already discussed in the previous lecture, probes, different type of probe, single stranded probe, single stranded DNA, single stranded RNA, double stranded DNA, double stranded RNA, all four different type of probes we have learned in the previous slide. So today we can divide or we can classify these probes again in three different types. It is easy to understand when we classify anything. It is easy to remember. So here on the basis of where it is tagged or tag is present, the probes are classified into three different types. One is and labeled probe, and labeled probe. The second one is intermediate labeled probe, and the third one is continuous labeled probe. सो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? वेरी सिंपल, नाम से ही हमें पता चल जाएगा, बहुत ही सिंपल है और इजी है रिमेंबर करना, बट इट विल डिसाइड which probe you are using and for what purpose. So you have to think about before designing your probes for your technique. Whatever technique you want to perform in your laboratory, based on that you have to design your probe where you want tag to be present. So if you want your tag to be present at the end, that means suppose this is your oligo, whether RNA or DNA, if tag is present at the end, either 5' end or 3' end, so it is end labeled probe. Suppose this is your oligo, and if tag is present here in the internal sites of the sequence of the primer or probe or oligo, so then it is intermediate labeled probe. So in the third case, if multiple sites are labeled with probe with the with any tag, maybe it is biotin labeled, your DNTPs are used, or maybe P32, or maybe you can say fluorophores are added, so that is continuous labeled probe. So these are the three different type of probes which we can see or which we can use based on our application, whatever we want to perform. So how these probes, different type of probes, are synthesized in the laboratory? So for that, what we can see, there are several different type of method. The first one is PCR method. So you can generate your probes by PCR method. How you can generate your your probe by PCR method? So PCR, as you know that this is your template, and 5' to 3' to your 5'. This is your template DNA, and if you are using primers, and on that primer, if they are tagged with some kind of maybe biotin molecules, or maybe you can say that maybe they are having P32 labeled nucleotide. So when in the denaturation and renaturation, amplification or annealing step, or in the PCR cycle, you have multiple fragments in which the primers, your ends are tagged with maybe biotin molecule or P32 label. So such kind of probes you can generate in the laboratory with the help of using some small primer or PCR based methods. So this is very simple, in which what you have to do, you have to use very small primers, very small oligos, and if you want to generate your probe, then these primers are the part of your amplified product. They will be the part of amplified product. Now you can use this
double stranded structures as a probe for your further experiments, right? So this is your PCR method. Then your second method of your generating your probe, second method of generating your probe is your second method of generating your probe is random addition of labeled nucleotide. So we can generate such kind of probes? It's easy. What we will do, suppose this is your fragment, double stranded fragment. So when you heat this double stranded, now all these fragments, they will be separated. So you have heated this, आपने इसको क्या कर दिया, हीट किया, डीनेचुरेशन किया. अब आप क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट आप क्या करेंगे, प्रोब डालेंगे, प्राइमर्स और रैंडम प्राइमर्स डालेंगे, छोटे छोटे, which are labeled with the, which are, आपने क्या कर दिया इसमें, इस तरह से आपने इसमें प्राइमर्स डाल दिए. अब क्या होगा, आपने इसमें प्राइमर डाल दिए. अब प्राइमर डालने से क्या होगा, जब ये बिकॉज दिस इज फॉर 5 प्राइम टू 3, बिकॉज दिस इज, इफ दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, then this must be 5 prime to 3 prime, so it will extend towards this side. This is also 5 prime to 3 prime, so ये भी इस साइड जाएगा, बट ये 5 prime to 3 prime जाएगा तो इस साइड डायरेक्शन. अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे निक्स जनरेट हो जाएंगे, एंड दोस निक्स देन at the time of repair, what you, or DNA polymerase, what it will do, you can add labeled DNTP. आप क्या करोगे, लेबल्ड DNTP ऐड करोगे, जो फ्लोरोफोर और P32 और बायोटिन मॉलिक्यूल कैरी करेगा. तो सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे आपका DCTP जो था वो क्या था, लेबल्ड था. तो अब जहां पे भी DCTP आएगा तो आपका क्या होगा, जहां पे भी C आएगा या साइटोसिन का आपका लाइगेट यूज होना है, वो C जो है वो इसको यहाँ लाइगेट हो जाएगा. एंड देन ये जो आपका प्रोब है, ये आपका क्या हो जाएगा, लेबल्ड विथ सम पोजीशंस जो है वो उसकी क्या हो जाएंगी, लेबल हो जाएंगी. राइट, सो दिस इज रैंडम एडिशन ऑफ लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड. इसमें क्या हुआ, रैंडमली आपने जो भी न्यूक्लियोटाइड, लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड इसमें डाला, वो इसमें ऐड हो गया. सो दिस इज योर रैंडम एडिशन ऑफ लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड. राइट, अब हम इसमें देखेंगे कि ये तो था हमारा रैंडम. अगर हम इसमें देखें, अगर हम दूसरा तरीका देखें, द थर्ड वन इज निक ट्रांसलेशन. The third one is your Nick translation. Nick translation. अब Nick translation में क्या होगा, हमारे पास Nick translation में किस तरह के प्रोब्स आएंगे, इंटरमीडिएट प्रोब्स आएंगे. कैसे आएंगे, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक है, डबल स्ट्रैंडेड आपका डीएनए है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. डीएनए इज वन, इट विल जनरेट योर निक्स. तो यहाँ पे OH ग्रुप और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप. नाउ अब आप क्या करेंगे, आप इसमें लेबल्ड और टैग DNTP ऐड करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे, लेबल्ड और टैग DNTP ऐड करेंगे. और जब ये ऐड करेंगे तो आपका जो DNA पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, जो ये पहले वाला बेस था इसको रिमूव करेगा. इट विल रिमूव दिस बेस एंड इट विल ऐड योर, जो भी आपने टैग या टैग आपने न्यूक्लियोटाइड डाला है वो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैग DNTP. अब आपके पास यहाँ पे टैग DNTP आ गया. अब क्या होगा,
अगले रिएक्शन में आपका डीएनए पॉलीमरेज इसको रिमूव करेगा एंड देन इट विल गो ऑन. सो बाय द एंड of your PCR you will have multiple fragments of tagged or labeled fragments, double stranded fragments or labeled probes. ठीक है. So this is the another way by which you can add nick translation, by which you can add labeled nucleotide in the center of the sequence. तो आपने कहाँ डाला? सेंटर में डाला या आपके किसी भी इंटरनल साइट पे आपने डाला. अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस लेबल्ड कैसे बन सकते हैं. तो कंटिन्यूअस लेबल में आपने क्या किया है, मैंने ये फ्रैगमेंट लिया है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और आपने क्या किया है कंटिन्यूअस में, आपने जब पीसीआर परफॉर्म किया उसमें आपने एक डीएनटीपी कोई भी सपोज सीटीपी डाल दिया मैंने लेबल्ड, बाकी आपने क्या डालने हैं नॉर्मल डीएनटीपीज और अपने प्राइमर्स डाले एंड देन पीसीआर परफॉर्म किया. तो अब आपका क्या होगा, जब ये पीसीआर चलेगा तो आपके पास मल्टीपल फ्रैगमेंट जनरेट होंगे जिसमें जो भी आपने सीटीपी जहां पे भी होगा वो अपने आप रैंडमली किसी भी साइट पे जहां पे उसका पेयरिंग होगा तो वहां पे यू कैन हैव डिफरेंट और मल्टीपल साइट्स labeled with that particular your tag. The tag, it can be fluorophore, it can be your P32 label, or it can be your biotin. But P32 label में we usually perform end labeling, and even for whatever probes we are using for real time PCR, in those cases also we are having or we use end labeled probes only, because those dyes or fluorophore and the method is very costly. So हम लोग continuous labeled probes के लिए नहीं जाते हैं. तो हम क्या करते हैं, ना तो हम इंटरनल जो इंटरमीडिएट labeled probes यूज करते हैं ज्यादा कॉमनली, ना हम continuous labeled probes को यूज करते हैं. हम कौन से यूज करते हैं, end labeled probes. So end label में क्या होगा हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 प्राइम, मे बी 5 प्राइम इज योर लेबल और योर 3 प्राइम एंड इज लेबल्ड. तो मोस्ट कॉमन मेथड क्या है हमारा, एंड लेबल्ड वाला. सो कंटिन्यूस में हमारा नहीं है यूज होगा, इंटरमीडिएट में भी नहीं होगा, लेकिन हमारा मैक्सिमम जो होगा वो कौन सा होगा, एंड लेबल में. तो रियल टाइम पीसीआर आर प्रोब्स आर लेबल्ड एट 5 प्राइम एंड. और तो 5 प्राइम एंड के लिए जो हमारे पास रिएक्शन है तो बहुत ही सिंपल एक रिएक्शन है. सपोज दिस इज योर ऑलिगो, ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये आपका ऑलिगो है. अब आपने इसमें क्या ऐड करना है, एटीपी ऐड करना है. क्या ऐड करना है, एटीपी. बट इस एटीपी में जो आपका you can use this method to label by your P32 labeled also. The method is common, just you have what you have to think. जैसे हमारा ये आपका ATP है, इस ATP में आपके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं. हमें पता है ATP में कितने फॉस्फेट ग्रुप होंगे, 3. तो जो ये अल्फा, बीटा एंड यो गामा, जो ये गामा पोजीशन होती है इसको हम रिप्लेस करेंगे. किससे रिप्लेस करेंगे, आइदर P32 से और सल्फर से. किससे रिप्लेस करेंगे, P32 से और सल्फर से. अगर हमें रेडियो लेबल्ड प्रोब चाहिए तो हम P32 से करेंगे. अगर हमें फैम और फ्लोरेसेंट लेबल चाहिए तो हम किससे यूज करेंगे, सल्फर से. तो अब ये जो हमारा एटीपी है ये क्या बन जाएगा, एटीपी गामा एस. क्या बन जाएगा, गामा एस, और एटीपी गामा P32. ठीक है. तो हमने क्या डाला, हमने डाला आपका न्यूक्लियर ऑलिगो प्राइमर्स, और यू कैन से प्राइमर्स आल्सो बिकॉज दे आर नॉट लेबल्ड, सो दे आर शॉर्ट ऑलिगोस. तो हम इसको सिंपली क्या कैसे लिखेंगे रिएक्शन को, आपने ये ऑलिगो डाला, इसमें हमने डाला एटीपी गामा P32 और एटीपी और बोला मैंने, ठीक है, और एटीपी गामा सल्फर. अब क्या होगा कि ये जो ग्रुप्स हैं ये इसके 5 प्राइम एंड पे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सो 5 प्राइम एंड का जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो दैट इज रिप्लेस्ड विद दीज 2 ग्रुप्स. तो अब आपका क्या बन जाएगा,
यहाँ पे बन जाएगा P32 लेबल्ड आपका 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, और आपका क्या बन जाएगा S, एंड S किस पोजीशन पे ऐड होगा 5 प्राइम एंड पे और 3 प्राइम एंड पे। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरोथायोएट। क्या ये क्या कंडीशन है हमारी, फॉस्फोरोथायोएट क्या बन जाएगा फॉस्फोरोथायोएट। जो फर्स्ट बेस होगा उस पे उसका जो फॉस्फेट ग्रुप होगा विच इज रिप्लेस्ड बाय अदर सल्फर और P32। तो बिकॉज ATP ने क्या किया, उसका जो एक लास्ट वाला जो फॉस्फेट था या उसके ऊपर सल्फर ग्रुप था गामा पोजीशन पे, दैट विल रिप्लेस योर नॉर्मल फॉस्फेट फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड एट 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड के जो आपका न्यूक्लियोटाइड है उसको वो रिमूव करेगा। And then this phosphorothioate, it will react with your FAM or your Psi5, Psi3 or your Bic or your Hex. Many fluorescent dyes or maybe rocks. So इस तरह की बहुत सारी फ्लोरोफोर डाइज हम यूज करते हैं अपने प्रोब्स को लेबल करने के लिए। अब हम इनमें से जो भी हम जिसके साथ भी लेबल करना चाहते हैं हम उसको ऐड कर देंगे। अब क्या होगा, हमारा ये जो सल्फर है यहाँ पे ये जो फैम है ये आपका ग्रुप जो है 5 प्राइम एंड पे आपका यहाँ पे फैम जो है वो टैग हो जाएगा इफ वी आर यूजिंग फैम, राइट। अगर हम उसमें फैम यूज कर रहे हैं तो आपका फैम जो है वो 5 प्राइम एंड पे आपका टैग हो जाएगा। सो this is simple way to understand the reaction which they are performing to label your primers to make it as a probe for your real time PCR. So these are end label probes. अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि 5 प्राइम एंड पे तो आराम से लेबल हो गया by this kind of method, but हमारा 3 प्राइम एंड पे कैसे होगा? So how 3 prime end is labeled? Usually we know that in real time PCR the 3 prime end is labeled with your quencher molecule which quench the fluorescence generated by the your fluorophore. So उसके लिए भी हमें जो फ्रेट टेक्निक है या जो फ्रेट टेक्नोलॉजी है, वी शुड अंडरस्टैंड द फ्रेट मेथड, हाउ दिस एनर्जी ट्रांसफर इज लाइक यूटिलाइज्ड टू डेवलप अ टेक्निक। सो उसमें क्या होगा आपका, अब 3 प्राइम एंड पे वी नो दैट जब भी हमारा ऑलिगोसिंथेसिस होता है तो हम जैसे सॉलिड फेज ऑलिगोसिंथेसिस यूज करते हैं, तो उसमें क्या होगा हमारा, सपोज मैंने बोला मुझे 3 प्राइम एंड पे ऐड करना है, तो 3 प्राइम एंड पे तो आपका जो सॉलिड फेज होगा उस पे ही आपका जो मॉलिक्यूल है, जो टैग है, वो क्या हो जाएगा, अटैच होगा या फिक्स होगा। उसके आगे आपका जो एक्सटेंशन है, क्योंकि ऑलिगोसिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे चलता है, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ ये आपका ऑलिगोसिंथेसाइज हो जाएगा। This is one way to add the tag at 3 prime end. The other way of adding tag is by chemical reaction. तो जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं वो 3 प्राइम एंड पे आपके क्वेंचर मॉलिक्यूल्स को भी ऐड करती हैं। तो कंपनीज they follow different companies, they follow different methods, but different type of tags can be added at 3 prime and based on, जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे बायोटिन ऐड करना है तो वो क्या करते हैं, बायोटिन मॉलिक्यूल दे विल इमोबिलाइज ऑन द सॉलिड सरफेस और उसके ऊपर आपका ऑलिगोसिंथेसिस हो जाता है। तो इस तरह से वो यूज करते हैं, और दे कैन रिप्लेस or they can add a tag at 3 prime end like quencher and other with the help of chemical reactions. So this is very simple to understand how the probes are generated. So if we summarize this whole thing, we have learned that there are 3 different type of probes other than double stranded. In last lecture we have learned double stranded, single stranded, DNA and RNA probes. Today we have learned end labeled probes, intermediate labeled probes and continuous labeled probes, जिसमें हमने देखा different method, कौन से, PCR based, then your random addition method, then your NIC translation method, 5 prime end labeling,
थ्री प्राइम एंड लेबलिंग हमने डिफरेंट टाइप के मेथड्स देखे जिससे हम अपने प्रोब्स को जनरेट कर सकते हैं. सो in real time PCR and labeled probes, these are single stranded, mostly single stranded probes, and 5 prime to 3 prime, on which 5 prime is labeled with your fluorophore, 5 prime is labeled with fluorophore, and 3 prime is labeled with your quencher molecule. So in next lecture we will learn what are the different type of chemistries which are used to perform real time PCR. So बहुत ही सिंपल है अगला लेक्चर, बहुत इजी है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड विच टेक्निक वी वांट टू फॉलो. सो उसमें कौन सी के जैसे हाइड्रोलिसिस केमिस्ट्री है, हम मॉलिक्यूलर बीकन्स यूज करना चाहते हैं, या हम कोई अदर टाइप के प्रोब्स यूज करना चाहते हैं, हम अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, या हम अपनी स्पेसिफिसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोब्स हमें पता होने चाहिए कि हम किस तरह के प्रोब डिजाइन करें, सो दैट हमारा जो असे है या जो भी हम किट डेवलप कर रहे हैं इट शुड बी स्पेसिफिक एंड मोर सेंसिटिव ऑल्सो. और इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोब्स या आपके जो मेथड्स हैं वो फॉलो होते हैं. तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट all those kind of chemistries or all those kind of methods by which we can perform your real time PCR. So उनका हम basic अगले lecture में learn करेंगे. This is all about your probes. So thank you, and if you have any queries you can write to me. You can if you want to learn any other topic, please write to me.